Hi everyone, welcome to the topic Time and Work from the book R.S. Agarwal. Now let's see this question. It is said that A can do 2 by third of a certain work in 16 days. We don't know what amount of work he do. ओके सो इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे कि जैसा स्टेटमेंट है वैसे ही लिख लोगे तो इट विल बी मोर इजी. सो ए कैन डू 2 by third of a work. Okay, certain work in how many days? 16 days. So वो certain work को क्या मान लेते हैं? X days. That certain amount of work जिसको X माना है, of माने multiply और X, this is how much? This is 16. We can solve for X कि how much days A takes to complete the work. तो 16 into 3 by 2, that means 24 days. So from here we got that A can work for 24 days. So this is 24 days he can work. Now we have to find 1 day work. So 1 day work क्या हो जाएगा? 1 upon 24 part. So A can work for 1 upon 24 part. Similarly यहाँ पे देख सकते हैं कि B can do 1 upon 4 of the same work in 3 days. Okay, यहाँ पे भी इसको find out कर देते हैं हम. So B can do 1 upon 4 of a certain work in 3 days. So 3 days है. So X की value क्या आ जाएगी? 3 into 4, that means this is 12 days. Now, so B का यहाँ पे work कितना मिल रहा है? B can work for 12 days. So B का 1 day work 1 upon 12. So he can work for 1 upon 12 part. Now in how many days will they work together? So बस इसी को कर लेते हैं. Together they will work. That means we will add 1 upon 24 A का 1 day work, 1 upon 12 B का 1 day work. So इसको जब आप करोगे तो 24 LCM देगा. 1 plus 2, that means 3 by 24. Cross cut it 1 by 8. That means this is the 1 day work they together work. So total work done by them 8 days. So ये क्वेश्चन भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे हमारे पास A का वर्क नहीं पता था इन हाउ मेनी डेज A कैन वर्क, बट पार्ट ऑफ द वर्क पता था कि 2 by third पार्ट ऑफ द वर्क ही कैन डू एंड दैट पार्ट ऑफ वर्क इज फिनिश्ड इन 16 days. सो 1 day वर्क किया, इसी से B का भी हमने फाइंड आउट किया. 1 day वर्क दिस इज 1 upon 12 and this we have. In this question, it is said that A, B, C, 3 persons can do the piece of work, like can work for 15 days, B can work for 12 days and C can work for 20 days. They started the work together. मतलब तीनों ने एक साथ तो वर्क किया बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days. सो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हैं बट यहाँ पे 3 persons आर डूइंग द वर्क. सो पहले तीनों का अलग अलग हम फाइंड आउट कर लेंगे 1 day वर्क. बट यहाँ पे ये भी दिया गया कि दे वर्क टुगेदर एंड बट आफ्टर 2 days सी लेफ्ट. तो पहले तो तीनों का काम हम 2 days का निकाल लेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली पहले हम निकालते हैं ए का 1 day वर्क. दिस इज 1 upon 15. इसी तरह से B's this is equals to 1 upon 12 and C's 1 upon 20. So together their 1 day work is how much? 1 upon 5 part. But it is given that they work together for 2 days and then C left the work. 1 day they can work together for 1 upon 5 part. They can finish the work 1 upon 5 part. So if they work together for 2 days, 1 day work है 1 upon 5, तो 2 days का वर्क क्या हो जाएगा? 2 by 5 part. So इसको करने के बाद C has left. So remaining work is done by whom? So remaining work is done by A and B. So चलो देख लेते हैं पहले तो remaining work कितना बचा. ठीक है, remaining work is 1 minus 2 by 5. This is 3 by 5 part. This part of work is still left. Means it's ये part अभी भी बचा हुआ है और ये बचे हुए काम को कौन कर रहा है? This remaining work is done by A and B together. So अब हम क्या करेंगे कि A और B का together 1 day work निकाल लें. हमने यहाँ से देख सकते हैं A का 1 day work 1 upon 15 है और B का 1 day work 1 upon 12 है. Means this is how much? A and B together work and they can complete 3 by 20 part of work. Okay, and this 3 by 20 part of work they do the total work done by A and B. This is what? 1 day work है 3 by 20. So together क्या देगा? 20 by 3 days. So remaining work done by A and B together, this is what? 3 by 5 part. Total कितना लगता है अगर साथ में करते? 20 by 3. क्रॉस कट किया 5 4 20. सो रिमेनिंग वर्क डन बाय ए बाय टुगेदर इज व्हाट 4 days. इस क्वेश्चन में देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ए और बी का टुगेदर वर्क पता है, दे वर्क टुगेदर, यानी ए
plus B together work for how many days? 18 days. B और C together can work for 24 days. और इसके आगे क्या कह रहा है कि A और C they can work together for 36 days. So हमारे पास ये देखो कि A भी 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है. If you combine all this, है ना? So together work के लिए हमें sum up करना पड़ेगा. So पहले तो इनका 1 day work निकाल लें. तो A plus B का together का 1 day work ये हो जाएगा 1/18. इसी तरह से B plus C का भी 1 day work 1/24 पार्ट. और फिर आपका है A और C, इनका भी हम 1 day work फाइंड आउट कर लेते हैं. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 36 का. दैट मीन्स 1/36. अब टुगेदर वर्क दे विल डू. तो टुगेदर के लिए वही जैसे मैंने आपको कहा है कि जब आप देखोगे A प्लस बी जोड़ो, फिर से जोड़ो B प्लस C का वर्क और A प्लस C का वर्क. तो यहाँ पे देखो A कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है. B कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है. और C कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, सो वो तो आपने यहाँ से देख लिया. तो इनका तीनों का टुगेदर वर्क फॉर 1 डे क्या देगा? दिस इज आई हैव टू राइट 1 डे वर्क. टोटल कर लिया 4 + 3 7 8 9/72. सो दे, अब इनको देखोगे 2 टाइम्स क्या आ रहा था, A आ रहा था, B आ रहा था, C आ रहा था. इनका हमने टुगेदर 1 डे वर्क निकाला. ठीक, सो ये क्या दे रहा है 9/72. सो अब क्योंकि डबल हो रहा है तो A प्लस B प्लस C का 1 डे वर्क क्या आएगा? मीन्स जो इधर का 2 था ये शिफ्ट हो जाएगा इधर. दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो 9/72 डिवाइड 2, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर 1/2. दैट मीन्स क्रॉस कट कर लेते हैं. 9 8 से 72 यानी 1/8 इंटू 2 1/16. टोटल डेज दे वर्क टुगेदर इज हाउ मच? 16. मतलब इसका 1/16 का रेसिप्रोकल कर लेंगे 16 days. In this question it is said that A and B can do the work in 12 days. So 1 day work भी हम फाइंड ही कर लेते हैं. 1 day work क्या हो जाएगा? 1/12. Similarly, if you see that B और C together work for 15 days. So B and C इन दोनों का 1 day work भी तो निकाल लें. So this is reciprocal of 15. This is 1/15. Now आगे क्या कह रहे हैं? C और A can work for 20 days. So इसको भी लिख लेते हैं. So C and A का 1 day work तो निकाल लें upon 20 part. Now what is asked? In how many days A alone can complete the work? मीन्स हमारे पास A प्लस बी है, B प्लस C है, C प्लस A है. सो इन सब का ऑल टुगेदर वर्क A प्लस B और यहाँ पे देखोगे B प्लस C, इसको भी ले लेते हैं हम, C प्लस A, सो उसको भी ले लेते हैं. यानी कि यहाँ पे देखेंगे 1/12 एंड हियर यू सी 1/15 एंड हियर यू सी 1/20. सो 1/5 पार्ट है. बट ऐसे नहीं होगा. आप यहाँ पे ये देखो कि A 2 बार आ रहा है, B भी 2 टाइम्स दिख रहा है, यहाँ C भी ले रहा है. जब हम टुगेदर ले लेते हैं, सो दिस इज 2 टाइम्स टुगेदर वर्क ऑफ A प्लस B प्लस C. दे वर्क फॉर 1 डे. ओके, सो 1 डे में इनका आ रहा है 1/5. तो टोटल वर्क डन A प्लस B प्लस C. पहले तो इस 2 को आप इधर लेके आओगे, 1/5 में डिवाइड होगा 2, यानी ये हमको देगा क्या? अगर हम यहीं पे इरेज कर देंगे, सो मतलब 2 नीचे आएगा, यानी 5 इंटू 2 10 हो जाएगा. रेसिप्रोकल कर ले 10 डेज. ओके, 10 डेज आ गए टोटल वर्क. अब हमें फाइंड क्या करना है? A का अलोन वर्क. नाउ A अलोन कैन वर्क. क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे देखोगे आपके पास A, यहाँ पे B प्लस C वाला पार्ट है. B प्लस C का 1 डे वर्क पता है 1/15 है, और टुगेदर भी पता है हमें A प्लस B प्लस C 1/10 है. सो वहां से आप निकाल सकते हो A का अलोन वर्क. अब आप यहाँ पे देखो A कैसे मिलेगा? A आपको कैसे मिलेगा? जब आप A प्लस B प्लस C में से B और C को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या? A मिल जाएगा ना. हमारे पास 3 क्वांटिटी है A प्लस B प्लस C. ठीक है, और साथ में 2 क्वांटिटीज में दिख रही है B प्लस C. सो अगर A प्लस B प्लस C में से आप माइनस कर दो, यानी कि A प्लस B प्लस C का 1 डे वर्क क्या था? 1/10. और B प्लस C का 1 डे वर्क क्या था? 1/15. माइनस कर लेंगे 5/150 आएगा. दैट मीन्स 1/30. यानी कि A का 1 डे वर्क हमें कितना मिल रहा है? 1/30 part. A can complete the work in how many days? He can complete the work in 1/30 का रेसिप्रोकल कर लो 13 days. So this is how we do this question. और complicated questions हैं जो कि further हम बताने वाले हैं. So let's move to the another part. Now let's see the question based on the pipe. ठीक है, या जैसे कि अभी तक हम A कैन कंप्लीट द वर्क, B कैन कंप्लीट द वर्क टाइप्स के क्वेश्चंस कर रहे थे. पर्सन वर्किंग. ओके, यहाँ पे पाइप्स के लिए हम देखेंगे कि द सेम प्रोसेस इज देयर. सो अ पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 hours. पाइप A कैन फिल इट अप इन 10 hours. पाइप B कैन फिल इट अप in 15 hours. If both are open together, then in the empty tank, then how much time will they take to fill the tank completely? So it is just same as the previous questions as we were doing. Pipe A can fill the tank in how many hours? 10 hours. So इसका 1 hour तो निकाल ले.
कितना हो जाएगा 1/10 पार्ट. Similarly, pipe B can fill the tank in 15 hours. So pipe B can fill the tank in 1 hour. ये भी तो लिख लो. 1 hour में रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15 पार्ट. टुगेदर दे कैन फिल अप द टैंक इन 1 hour. कैसे करोगे? टुगेदर यानी कि पाइप A प्लस पाइप B 1/10 प्लस 1/15 सम अप कर लेते हैं तो इट विल गिव यू 25/150. Cross cut and get the answer. So the answer is what? A and B together can fill the tank in 1 hour. How much part? 1/6 part. So it takes how much hours to fill the tank for A and B? So in how many hours? Total hours? 6 hours. See the difference in this question. It is given that pipe A can fill the tank in how many hours? 5 hours. While the pipe B can empty the tank. So यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक पाइप तो फिलअप करता है बट साथ साथ सेकेंड पाइप एम्प्टी कर देता है. सो जहाँ पे फिलअप करता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे और जहाँ पे एम्प्टी करेगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे. सो इफ बोथ आर ओपन टुगेदर एट द सेम टाइम तो हाउ मच टाइम विल दे फिल अप द टैंक कंप्लीटली. ठीक है. सो ठीक है, पाइप ए कैन fill the tank in how many hours? 5 hours. So pipe A can fill the tank in 1 hour. Now pipe B can empty the tank. वो भी लिख लेते हैं. In how many hours? 6 hours. So in 1 hour 1/6 part. So if they are together open, मैंने आपको क्या बोला? One is empty, one tank is emptying it and another one is filling up. So fill जो कर रहा है वो 1/5 part है, पॉजिटिव है, जो empty कर रहा है उसको कर दिया नेगेटिव 1/6. LCM ले लेंगे. So answer will be what? 1/30 part. So this is the part. So the time taken to fill up the complete. This is how much hours? This is 30 hours. See this question. It is said that a cistern has two inlets, A and B, and which can fill the tank in how many minutes? A can fill the tank in 12 minutes and B can fill the tank in 15 minutes. They are filling up. As I told you, as they fill up, we take it as positive quantity. While it is said that an outlet. So A and B were inlet, we will take it as positive, and C is an outlet. So it can empty the cistern in 10 minutes. If all the pipes are open together, how much time will they fill the tank completely? So बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है. यहाँ पे 3 pipes हैं A, B, C. A can fill the tank in how many minutes? A can fill the tank in 12 minutes. Minutes है तो पहले तो इसको hours में change कर लें. 12/60. So cross cut किया 1/5 hours. So in 1/5 hours A can fill the tank. यहाँ पे 1/5 hours हो गया है. So A can fill the tank in 1 hour. So जैसे कि हम पहले रेसिप्रोकल करते हैं, यहाँ 1/5 का रेसिप्रोकल कर लेंगे. So क्या आएगा? इसको करते हैं कि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या देगा? 5 part. Okay, similarly यहाँ पे B का क्या दे रखा है? B can fill the tank in how many minutes? It is given as 15 minutes. So इसको भी convert कर लेते हैं hours में. 15/60 cross cut कर लेते हैं. This is going to give you 1/4 hours. So 1/4 hours है. So in 1 hour क्या करूँगी? 1/4 का reciprocal. So वही कर लेते हैं. तो 1/4 का reciprocal 4 part. But C क्या है? Outlet है. ठीक है. सो C इज द आउटलेट, तो उसको हम ले लेंगे नेगेटिव. इसका क्या दे रखा है? 10 मिनट्स. इन 10 मिनट्स 10 मिनट्स को कन्वर्ट कर लो आवर्स में. 10/60. सो दिस इज 1/6 hours. So this can empty the tank in 1/6 hours. So in 1 hour C can empty the tank. This is what? 6 parts. So together if they are opened, together के लिए फिर से हमें A plus B plus C लेना पड़ेगा. So लिख देती हूँ together that means A plus B plus C. So आप ये देखिएगा कि दो तो भर रहे हैं, यानी A भर रहा है, B भर रहा है, बट C आउटलेट है. तो 4 पार्ट्स आया था, ये B का था, और A का पार्ट था 5 पार्ट, C का था 6 पार्ट. तो इसको करोगे, आउटलेट है तो माइनस कितना पार्ट है? 6 माइनस. सो 4 + 5 दिस इज 9 - 6 3 पार्ट. 3 पार्ट्स टुगेदर अगर A plus B plus C अगर हम देखते हैं, सो दे कैन फिल द टैंक इन 1 hours, है ना. इन 1 hour A and B and C can fill the tank. This is 3 part together, so they can fill the tank completely. How much hours? This is 3 का reciprocal कर दोगे 1/3 hours. इसको हम minutes में change कर लें, 1/3 into 60 कर लें. So this is going to give you 20 minutes. So this is the answer. में क्या कह रहा है कि a pipe can fill the cistern in 9 hours. ठीक है. And due to the leak in its bottom, the cistern fills up in 10 hours.
Total time taken to fill the cistern is 10 hours. If the cistern is full, how much time will it be emptied by the leak? So हमें नहीं पता जो सेकेंड जो पाइप है जो लीक कर रहा है उसका टाइम पीरियड कितना है, बट एक जो पाइप है फर्स्ट पाइप, लेट इट बी ए, उसका टाइम पीरियड क्या है 9 hours. A pipe can fill the cistern in how many hours? 9 hours. So 9 hours है, इसका टोटल टाइम तो 1 hour में कितना फिलअप करेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9 पार्ट. ओके, अब सेकेंड पाइप जो है जो लीक कर रहा है उसका हमें नहीं पता, सो उसको नाम दे देते हैं बी. ये एम्प्टी करेगा, सो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे ना. सो इसका पहले तो टोटल आवर्स मान लेते हैं x आवर्स, तो इन 1 hour कितना पार्ट करेगा 1/x part, and total time taken to fill up the this tank, this is how much, 10 hours. So इसका total time निकाल लेते हैं in 1 hour. कितना हो जाएगा 1/10 पार्ट. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक पाइप फिल कर रहा है, दूसरा पाइप से लीकेज हो रहा है, सो जो ए फिल करता है उसको प्लस में लेंगे और जो लीक कर रहा है वो माइनस हो गया, और ये हो जाएगा क्या, ये आपका टोटल टाइम है 1/10. ए का था हाउ मच 1/9 और सेकेंड था 1/x. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x वाले को इधर शिफ्ट कर लो और इसको इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर लेते हैं हम. सॉल्व किया, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 1/90, दिस इज 1/x, और x इज इक्वल्स टू 90 आवर्स. सो पाइप बी जो था जो एम्प्टी कर रहा था कितने आवर्स में एम्प्टी करेगा, इन 90 आवर्स. Finally, this is the last question of this topic, time and work, from the book R.S. Agarwal. Okay, so let's see this question. It is said that pipe A can fill an empty tank in 6 hours, while pipe B can fill it up in 8 hours. If both the pipes are opened and after 2 hours the pipe A is closed, how much time will B take to finish the remaining tank? Okay. So it is just like the previous questions जो हम लोग उसमें बात करते हैं, some persons join the work या left the work, है ना. So उसी टाइप का ये क्वेश्चन है. So both the pipes can fill up, है ना. So दोनों को हम पॉजिटिव ही लेंगे. Okay, so सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से. Pipe A can fill the tank in how many hours? It is given as 6 hours. In 1 hour this pipe can fill the tank. This is 1/6 part. Similarly pipe B का कर लेते हैं. Pipe B can fill the tank. This is 8 hours. So in 1 hour, 1/8 part. So together they will fill up the tank in 1 hour. कितना हो जाएगा 1/6 plus 1/8. So LCM is 24. 6 4s are 24 and 8 3s are 7/24 part. So ये 1 hour में together करते हैं. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, let's see. If both the pipes are opened and after 2 hours pipe A is closed. After 2 hours the pipe is closed. That means 2 hours तक तो A और B together ही भर रहे थे ना. So 1 hour में कितना पार्ट भरते हैं 7/24 पार्ट. So in 2 hours together A और B कितना पार्ट भर देंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम. 7/24 into 2 क्रॉस कट कर लेते हैं. 7/12 पार्ट. ओके, 7/12 पार्ट ये भर दिए हैं. सो 2 आवर्स में ये भर लेते हैं 7/12 पार्ट. उसके बाद पाइप ए को क्लोज कर दिया गया, तो रिमेनिंग कौन भर रहा है, रिमेनिंग टैंक कितना लेफ्ट हुआ, तो टोटल को लेते हैं 1 माइनस 7/12 कर लिए, तो 5/12 पार्ट इज स्टिल लेफ्ट. और ये रिमेनिंग टैंक कौन भर रहा है, दिस रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड अप बाय बी. 5/12 है और बी की भरने की कैपेसिटी क्या 8 आवर्स. 8 से कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस कट कर लेते हैं, दैट मीन्स 10/3 आवर्स. ओके, ये इतने आवर्स इसको लगे, तो यानी कि 10/3 आवर्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे, इट इज गोइंग टू गिव यू 3 hours 20 minutes.